Hi, this is Mrs. Seema Pai from Nirmal Classes. Okay. Today let us take financial planning. But before taking this lesson, we should know what is GST. Now see, at first, every state had its variety of taxes levied through different stages of trading. For example, excess duty, custom duty, octroi, entertainment tax, etc. etc. Then all these taxes were subsumed into one tax that is known as GST. Full form of GST is a goods and services tax. It may be 0%, it may be 5%, it may be 18%, it may be 28%, it differ to different products. Okay. Now, what is 0% GST? Now, see, 0% means, first example I will give you on goods. Essential commodities like food grains, fruits, vegetables, salt, milk, you don't have to pay tax. Now, services. 0% services means you don't have to pay tax for the use of roads, bridges, or public library or agricultural related activities. Okay. Now GST is of two types, and this GST Act come from 1st July. It comes into effect from 1st July 2017. Okay. Now see, this is of two types kinds, that is SGST and CGST. SGST means state and CGST means central. If you pay 28% GST, then 14% will go to CGST and 14% will go to SGST. CGST plus SGST, they should be equal, and GST is double of these two taxes. Okay. Now I want to clear another concept. Whenever I say taxable value, it means the goods on which you have not paid tax, that is known as taxable amount या फिर taxable value. Okay. Now let's do the first maths, that is 4.1 first maths. Now see, listen to our first maths. Pawan Medical Supplies Medicines. Pawan Medical Supplies Medicines. On some medicines, the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? Now see. Rate of, now first you write solution. Let us do systematically. Okay. Solution. Okay. Now the rate of GST, that is goods and services tax, that is equal to 12%. Whenever you pay 12% to the shopkeeper, it means you are giving 6% to CGST and 6% to SGST. Understand? So, therefore, rate of CGST is equal to 6%. Therefore, rate of SGST 6%. You are giving 6% to central government and you are giving to 6% to state government. Okay. See, 6 plus 6, 12. GST is double of CGST and SGST. Understand? So, our first maths is finished. Now, let us go to the second maths. Now, listen to the second question. On a certain article, if the rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? Now see, solution
In every maths you have to write like this. That is solution. Now, rate of CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको 9% देने का है. Now what is the question? What is the rate of SGST? Now you know CGST is equal to SGST. CGST कितना रहता है, SGST भी उतना ही. So if CGST is equal to 9%, then SGST is also 9%. Now they have asked the rate of GST. Now rate of GST is double of CGST and SGST. That is 9 plus 9 is equal to 18%. अभी आपका second maths is finished. Now let's go to the third maths. Now listen to our third maths. Measures real paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in tax invoice. Okay. Now, this shop, whatever it may be, it sold 2 tins of luster paint at taxable value of and the taxable value of each tin is 2,800. Now, taxable value that I have told you, what is the meaning of it? जब तक आप कौन सा भी एक चीज पर टैक्स नहीं भरते हैं तब तक वो अमाउंट कहला जाएगा टैक्सेबल वैल्यू. नाउ सॉल्यूशन. Now see, cost of 1 tin of luster paint. How much? 2800. You have to write like this, 2800 rupees. Therefore, cost of 2 tins of luster paint, that is 2,800 into 2. 2 8s are 16, 2 2s are 4, 5. This is the taxable value of 2 tins. Therefore, taxable value of 2 tins. देखिए अभी तक इसको टैक्स नहीं लगाया है इसलिए वो टैक्सेबल वैल्यू. ओके. उसके बाद दुकानदार ने जब आप बिल लेके जाते हैं बताया GST 28% डाला है. उसने बताया 28%. ओके. लेकिन 28% डाला, लेकिन आपको पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST. देखिए कैसा कंफ्यूज किया है. इधर GST बताया, ढूंढने को बोला है CGST एंड SGST. तो आपको क्या करने का है, GST अगर 28% है तो CGST कितना हुआ, CGST जितना रहेगा उतना ही SGST भी रहेगा. तो आपको मालूम है 28 डिवाइडेड बाई 2 40, मतलब हमारा CGST भी 14%, SGST भी 14%. ओके. अभी हमें क्या ढूंढने का है, अमाउंट. अभी ये हम लोग अमाउंट ढूंढेंगे. ओके. अमाउंट 14/100 इंटू 5600. ओके. एक जीरो को एक जीरो, एक जीरो को एक जीरो. 14 6s are 84.
हाथ में 8, 14 5 70, 70 प्लस 8 78 रुपीज। तो क्या होता है, CGST भी 784 रुपीज एंड SGST भी 784 रुपीज। अभी हमारा थर्ड मैथ्स फिनिश्ड। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ मैथ्स। Now our fourth maths is the taxable value of a wristwatch is rupees 586. Rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? अभी देखिए टैक्सेबल वैल्यू, अभी तक इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा है। सॉल्यूशन, the taxable value of a wrist watch, रिस्ट वॉच है कि रिस्ट बेल्ट, मैं थोड़ा देखती हूँ, एक मिनट। बरोबर बेल्ट, क्योंकि मैंने वही सोचा 586 रुपीज में वॉच कैसा मिलता है। ओके, बेल्ट। The taxable value of a wristwatch belt is equal to rupees 586. Okay. Therefore, rate of GST कितना, 18%। अब ये रेट ऑफ GST आपको कैसे मालूम पड़ता है, रेट करके, क्योंकि उसके साथ ऐसा परसेंटेज रहता है। लेकिन पहले इसका अमाउंट ढूंढेंगे। अमाउंट, GST का अमाउंट क्या देखेंगे, 18। जब भी परसेंटेज रहता है उसका नीचे हमें 100 डालने का है। अभी 586, ओके। 18 6s are 108, हाथ में 10। 18 8s are 144 प्लस 10 154, हाथ में 15। 18 5s are 90, 90 प्लस 10 105। अभी नीचे 100 के ऊपर हम लोग दो जगह छोड़ के पॉइंट डालते हैं, तो हमने 1 2 इधर पॉइंट डाला। ये है अभी हमारा रुपीस। अभी क्वेश्चन क्या है, therefore price of belt for the customer। तो आपको समझने का क्या है, टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। अभी हमारा टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 105 प्लस 48 प्लस हमारा टैक्सेबल, हमारा GST हम लोग इधर टैक्सेबल अमाउंट पहले लिखा है करके उसको ही पहले इधर लिखेंगे, दैट इज 586। उसके बाद हमने GST लिखा है तो वो उसको ही बाद में लिखिए, सिस्टमेटिक मैथ्स मांगता है। तो फिर अभी इधर कैसा करने का, 586, अभी इधर 105, इधर पॉइंट आता है 48, लेकिन इधर कुछ नहीं करके आपको ऐसे 0 डालने का है। अभी ये प्लस कीजिए, 0 प्लस 8 8, 4 6 प्लस 5 1 9, 5 1 6। Therefore, answer is 691.48 rupees. Now your this math is finished. Now let us do the fifth maths. The total value with GST of a remote controlled toy car is rupees 1770, 1770. Rate of GST is 18% on toy. I have written it 2 times, sorry. Now find the taxable value CGST and SGST for this toy car. Okay. तो आपको ये बात समझने का है, टोटल वैल्यू विद GST, मतलब इधर टैक्सेबल वैल्यू की बात नहीं हो रही है।
जो भी दाम दिया है उसको जीएसटी मिला के ही दिया है। ओके, देयरफॉर सॉल्यूशन लिखो, टोटल वैल्यू ऑफ ए remote controlled टॉय कार। ये मैथ्स आपको थोड़ा ध्यान से सुनने का है। क्यों माने, अभी तक हम लोगों को ऐसा टैक्सेबल वैल्यू ढूंढो नहीं बोला था, लेकिन अभी उस हमें ढूंढने का है, तो बरोबर सुनिए। ओके, अभी जीएसटी दिया है 18%, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू क्या करके मालूम नहीं है, तो ऐसा लिखो, लेट द टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। ओके, देयरफॉर amount of GST is equal to 18/100। अब ये टैक्सेबल इनकम x करके पकड़ा है ना, तो उसको 18x/100 करो। ओके, अभी हमारा रुकिए 1 मिनट। टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। ओके, अभी टैक्सेबल वैल्यू कितना, x, ये कितना, जीएसटी इतना। ओके, इज इक्वल टू टोटल वैल्यू कितना हमारा 1770। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स राइट हियर, multiply both sides by 100। तो ये हुआ 100x, ये हुआ 1800x, और ये हुआ 2 0। ओके, अभी 2 0, अभी हमें 100 से वी हैव टू गेट रीड ऑफ दिस 100। That is why we multiplied both sides by 100. Now see, cut. Now 100 plus 18, 118 is equal to 177000. Now x is equal to 177000, that is 177000 divided by 118. 118 ones are 118. 17 minus 8 9 6 1 5 0 0 0. Now 590 118 5 are, देखिए अभी ये ट्रिक्स कैसे करने का, 3 8 are 24, तो 8 5 are 0, तो ऐसे ट्रिक्स करने का। 590 तो ये 200, तो हमारा एक्स इज टैक्सेबल इनकम हुआ 1500 रुपीज। लेकिन हमने अभी तक जीएसटी अमाउंट नहीं ढूंढा है, तो वो पहले हम लोग ढूंढेंगे। रुकिए 1 मिनट, हमने अभी तक जीएसटी अमाउंट नहीं ढूंढा है। क्यों नहीं ढूंढा, क्योंकि हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू नहीं था, तो हम लोग अभी ढूंढेंगे 18x/100, 18 इंटू 1500 अभी हमें मिला, इसलिए हम अभी ढूंढ रहे हैं। 1 0 को 1 0, 1 0 को 1 0, 18 5 are 90, हाथ में 9, 18 1 are 18 प्लस 9 27। देखिए हमारा जीएसटी अकाउंट है 270, देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू 270 रुपीज। तो हमें अभी क्या ढूंढने का है, सीजीएसटी एसजीएसटी। देयरफॉर सीजीएसटी आपको मालूम है जीएसटी का ऑफ, तो कितना हुआ 2 135 रुपीज। तो एसजीएसटी क्या है, वो भी उतना ही, तो इज इक्वल टू 135 रुपीज। तो आपका 5th मैथ्स हो गया।
Now let's go to the sixth maths. Now our sixth maths is Tip Top Electronics supplied an AC of 1.5 ton to a company. Cost of AC supplied is rupees 51,200 rupees with GST. Rate of CGST on AC is 14%. Then find the following amount as shown in the tax invoice. तो आपको ये पूरा ढूंढने का है, लेकिन पहले मैथ्स का थोड़ा अर्थ देखेंगे। 1.5 टन का एक एसी सप्लाई किया, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट। 1.5 we don't have to do anything. Cost of the AC supplied is 51,200 with GST. It means total value. This is not taxable amount. फिर CGST का रेट है 14%। तो आपको क्या क्या ढूंढने का है, देखिए लेंथी मैथ्स। रेट ऑफ HST, रेट ऑफ CGST, taxable value, total amount of GST, amount of CGST, amount of SGST. Now see, taxable value of AC I have now shown you how to find out in the fifth maths. Okay, now our first question is solution. Total value of AC, that is 51,200 रुपीज। इसमें टैक्सेबल वैल्यू भी आया। ओके, जीएसटी और टैक्सेबल डाल के टोटल वैल्यू बना। ओके, तो और फर्स्ट क्वेश्चन इट्स रेट ऑफ SGST, दैट इज 14%। हमारा एक आंसर हुआ। तो उसके बाद रेट ऑफ CGST, अगर ये 14 है तो ये भी 14। चलो, हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। नाउ टैक्सेबल वैल्यू, नाउ मालूम नहीं, तो लेट द टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू X। अमाउंट ऑफ GST, देखिए अभी कंफ्यूज किया है, इधर CGST दिया है, CGST 14, SGST 14, तो GST कितना हुआ हमारा 28 अपॉन 100, 28% अपॉन 100। तो अमाउंट ऑफ GST करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टैक्सेबल वैल्यू से इंटू करना पड़ता है, दैट इज X। ओके, रेट ऑफ GST इंटू टैक्सेबल वैल्यू, तो 28 इंटू X, 28X अपॉन 100। ओके, ये हमारा अमाउंट ऑफ GST। ओके, रुकिए 1 मिनट। अभी हमारा टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम प्लस अमाउंट ऑफ GST। टैक्सेबल इनकम इज X, अमाउंट ऑफ GST इज 28X अपॉन 100, और हमारा टोटल वैल्यू है 51,200। अभी हमें इस 100 से वी हैव टू गेट रिड ऑफ, इसको हमको निकालने का है। तो हमने क्या लिखने का, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ओके, तो x इंटू 100, 100x, 28 इंटू x, 2800 अपॉन 100, 51,200, फिर 100 का 2 जीरो, इतना हो गया। तो अभी देखिए 2 जीरो को 2 जीरो, तो हो गया 100 प्लस 28, 128x इज इक्वल टू 512000। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 512000 अपॉन 128। तो
इधर हम करेंगे 512,0,0,0 अपॉन 128, 128 1 सा 2 सा 3 सा 4 सा। कैसे मालूम पड़ता है? 4 8 सा 32, ऐसा आइडिया करने का। हाँ, तो अभी कितना जीरो रह गया? 1 2 3 4, 40,000। तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हो गया 40,000 रुपीज। तो देखिए हम लोग इधर तक आ गए। अभी हमें टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी ढूंढने का, रुकिए करेंगे। अभी अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू। अभी हमारा टोटल वैल्यू है कितना? 51,200 माइनस टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 40,000। तो हमारा जीएसटी अमाउंट बना 11,200। अभी हमें क्या ढूंढने का है? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। तो कैसा करने का? सीजीएसटी का परसेंटेज दिया है 14/100, लेकिन इधर कभी भी हमें टैक्सेबल इनकम ही लिखने का। तो 40,000 लिखो, एक जीरो को एक जीरो, एक जीरो को एक जीरो, 14 जीरो सर जीरो जीरो, 14 5 56। ये आपका सीजीएसटी। तो फिर एसजीएसटी कितना है वो तुमको मालूम है, जितना सीजीएसटी रहता है उतना ही SGST. CGST is equal to SGST. Therefore, this is also 5600 rupees. तो हमारा 6th maths is also finished. Now let's go to the 7th maths. Now our 7th maths is Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount 5% was given on the printed price of rupees 40,000. Rate of GST charged was 28%. Find the purchase price of washing machine and also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. अभी देखिए, प्रसाद नाम का एक लड़का, उसने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, अभी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है, तो हमें लेना किससे है? प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन और उसका डिस्काउंट। ओके, अभी देखिए वो जब दुकान में जाता है तब उसको मालूम पड़ता है उधर एक अच्छा वॉशिंग मशीन रखा है जिसके ऊपर लिखा है प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 40,000। उसका बाजू ही उधर लिखा है 5% डिस्काउंट। उसको बहुत खुशी होता है कि उसको 5% डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये रेट है उसका, तो हम लोग अमाउंट ढूंढेंगे डिस्काउंट का। फाइव अपॉन 100 इंटू 40,000। एक जीरो को एक जीरो, एक जीरो को एक जीरो, 5,400 सर 2,000 रुपीज। तो उसका अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है 2,000। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना हुआ? 40,000। ये करने का सीधा डायरेक्ट 38,000 लिखने का नहीं, ऐसा लिखने का, इज इक्वल टू 40,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 38,000। ये उसका टैक्सेबल वैल्यू है। तो अभी क्या बताया है, बाद में वो जब काउंटर में जाता है उसको मालूम पड़ता है 28% जीएसटी लगाया है। बाप रे, जीएसटी रेट 28%। तो जीएसटी का अमाउंट हम लोग ढूंढेंगे 28/100। अभी आपको टैक्सेबल कितना मालूम पड़ा है? 38,000। 2 जीरो को 2 जीरो,
ये 0 इधर डालो, 28 8 आर 224, 4 इधर, 22 इधर, 28 3 आर 28 1 84, 106। तो ये हुआ जीएसटी का अमाउंट। रुकिए अभी 1 मिनट। अभी therefore printed price of machine, washing machine is equal to taxable value plus GST amount। ओके, अभी टैक्सेबल वैल्यू कितना है 38,000। अब ये कितना है जीएसटी का अमाउंट 10640, 48,640। ये आपका क्या है प्रिंटेड प्राइस ऑफ मशीन। अभी आपको मशीन लेने का है तो इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अभी सवाल क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। देखिए अभी बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 28 लेते हैं। नहीं, ये 28 आपका जीएसटी अमाउंट है, ये आपका जीएसटी अमाउंट है। तो अगर जीएसटी 28 है तो आपको पहले सीजीएसटी ढूंढने का। 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40। तो अभी अमाउंट कितना पूछा तो कैसा करने का, 14/100 और इसके साथ हमेशा हमें टैक्सेबल वैल्यू डालने का। 1 0 को 1 0, 1 0 को 1 0। अभी ये 0 इधर, 14 8 112, हाथ में 11, 14 3 42 प्लस 11 53, 5220। तो अगर CGST इज इक्वल टू 5320 रुपीज, तो हमारा SGST, तो हमारा SGST भी 5320 रुपीज। तो हमारा MSB 7th mass is also finished. So today we have finished financial planning of algebra of 10th standard 4.1। और अगर आपको पसंद आया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय।